So good morning guys. This is another video regarding the practice session of ER diagram. In the last video or last session we cover all the basic concept regarding ER diagram, and we done also one practice session on customer database. Now in this session, in this video, we cover or we design entity relationship diagram of banking system, right? So so for the first step of ER diagram, you need to identify the entity in the system and then find the attributes of these entity, and then finally we just create a relationship among the entities. So let's start for identifying the entities in the banking system. So we just very important some entities like customer. Definitely customer is very important entity in banking system. And in if we talk about the attributes of this entity, customer ID is a primary key, unique number, name, mobile number, date of birth, and address. These are all attributes of entity, customer entity. Second important entry is branch. Obviously, branch is entity, and these are some attributes regarding this entity like branch ID, branch name, IFSC code, location. These all are the attributes of branches, right? So branch ID is the unique number for all branches. So we can say we make this attribute as a primary key, right? In customer case, customer ID as a primary key. Account is also one entity. Account number, balance, type means this account either in saving account, current account, all different types of account available. So this is one attribute. So account number, obviously every accounts have different unique account number. So this is the primary key of this entity. Loan number and loan amount is also one entity. And installment number, installment amount, and date, this is also another entity, right? So now we design to create or design some ER diagram of this system. So now we start for designing the ER diagram. Like this is the ER diagram. Now we explain this ER diagram. How can you design this complete diagram? So guys, customer is one entity. We also discussed the customer is entity, and the attribute of this entity is customer ID, mobile number, customer name. Name is composite attribute, so we can divide them in two subsections: first name and last name. Mobile number is multi-value attribute, so we can just use the double circle, and customer ID is the candidate key, primary key, so we just underline. Now in this second accounts is also entity. Account ID, account number is primary key, so we just you can underline it, because this all are attribute representation, right? This is the candidate key. Types, balance is two other attributes, and we create this relation is a depositor relationship. The name of this relationship is depositor. And अगर इसमें हम देखें कि इनमें रिलेशन किस टाइप्स का है, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कार्डिनिटी क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द इंस्टेंस ऑफ दिस एंटिटी एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द एंटिटी इंस्टेंसेस ऑफ दिस एंटिटी, राइट? सो अगर हम बात करें कि एक कस्टमर के एक से ज़्यादा अकाउंट पॉसिबल है, और कम से कम अगर कस्टमर है तो एक अकाउंट तो होगा ही, इसीलिए 1,n लिखेंगे. द सेम थिंग्स यहाँ पे पॉसिबल है. अकाउंट्स के केस में 1,n की अकाउंट्स है तो एक कस्टमर का हो सकता है, और n नंबर ऑफ कस्टमर का कई बार जॉइंट अकाउंट्स भी होते हैं, राइट? तो जॉइंट अकाउंट के केस में अकाउंट्स के जो नंबर है वो मल्टीपल कस्टमर के साथ एसोसिएट होता है, इसलिए n लिखा. इस रिलेशन को आप एज ए मैनी टू मैनी रिलेशन भी काउंट कर सकते हो, या इसको कई बार n भी लिखते हैं, मैनी m:n मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, राइट? और द नेम ऑफ द रिलेशन इज डिपॉजिटर. सेकेंड, अगर हम डिस्कस करें कि कस्टमर का लोन के साथ रिलेशन है, कई कस्टमर लोन लेते हैं तो उनका लोन एक सेपरेट एंटिटी ली, इसका लोन नंबर आप यहाँ देखोगे, लोन नंबर एक कैंडिडेट प्राइमरी की है, और दूसरा एक अमाउंट उसका क्या है,
अदर एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे आप देखोगे बोरोवर एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ हमारा कस्टमर और लोन के बीच में, और इस रिलेशन का नाम हमने बोरोवर दिया, राइट। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे होगे कि यहाँ पे जो आपने एट्रीब्यूट्स देखे वो सारे एट्रीब्यूट्स एंटिटी के हैं, पर अगर आप इसको देखोगे ये एट्रीब्यूट्स आपका किस चीज का है, ये ना तो इस एंटिटी का एट्रीब्यूट है और ना ही इस एंटिटी का एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट किसका है, इस रिलेशन का। जो रिलेशनशिप क्रिएट हुई कस्टमर और लोन के बीच में, उनके बीच में एक रिलेशनशिप जब बनती है तब इसी एट्रीब्यूट का एग्जिस्टेंस आता है। ध्यान से देखना, कस्टमर लोन नहीं लेगा तब भी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन जब कस्टमर लोन लेता है तब उसकी एक स्टार्ट डेट स्टार्ट होती है कि उसने लोन किस डेट में लिया है, लोन इशूइंग डेट। तो दिस एट्रीब्यूट इज कंसीडर एज ए एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, बोरोवर रिलेशनशिप, नॉट नाइदर कस्टमर और नॉर लोन। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो ये जरूर याद रखेंगे कि अगर किसी रिलेशनशिप क्रिएट होने से कोई एट्रीब्यूट जनरेट होता है तो उसको हम रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट कंसीडर करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट देखा है। ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इनको हमें हर कॉन्सेप्ट को अपने डायग्राम्स में इंक्लूड करना है। सेकेंड चीज बात करें कि अकाउंट्स ऑब्वियसली किसी न किसी ब्रांच से एसोसिएट होता है, इसलिए अकाउंट्स और ब्रांच के बीच में हमने एक रिलेशन क्रिएट किया, अकाउंट ब्रांच रिलेशनशिप। यहाँ पे आपने जो कार्डिनलिटी देखने वाले हो, ब्रांचेस में मिनिमम 0 और मैक्सिमम n नंबर ऑफ अकाउंट हो सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 0,n लिखा है। और यहाँ पे अगर अकाउंट्स है तो एक अकाउंट अगर है तो वो ऑब्वियसली एक ही होगा और दूसरे ब्रांच में भी एक ही होगा। अगर इसको अपन इससे समझे, जो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, ये हमारा अकाउंट्स है और ये हमारी ब्रांचेस हैं। ये हमारा A1 अकाउंट है, A2 अकाउंट है, A3 अकाउंट है, ये B1 ब्रांच है, B2 ब्रांच है, B3 ब्रांच है। सपोज ये 2 अकाउंट्स इस ब्रांच के हैं, ए अकाउंट इस ब्रांच का है, इसमें अभी कोई भी अकाउंट्स नहीं है, इसीलिए हमने इसका मैक्सिमम कितना लिखा, 0,n, क्योंकि n नंबर को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे केवल और केवल एक को करेगा, इसलिए 1,1 लिखा हमने यहाँ पे, राइट। तो ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे यूज किया। सेम लोन का भी ब्रांच से एसोसिएशन होता है कि लोन किस ब्रांच से एसोसिएट है, इसलिए लोन का 0,n और 1,n हमने यहाँ पे बताया है। एक्चुअली यहाँ पे टोटली पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इस जो प्रेजेंटेशन है कार्डिनिटी का वो मिनिमम कॉमा मैक्सिमम में हमने यूज किया। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे वीक एंटिटी हमने आइडेंटिफाई की है। वीक एंटिटी आइडेंटिफाई जब हमने की है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि इसके पास कोई भी सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं है, राइट। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे भी देखा था कि लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जो एंटिटी आपकी इंस्टॉलमेंट है उसमें इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, ए सपोज 2,4 को हुआ, ए भी 2,4 को डिपॉजिट होना है, ए आपका 5,000 का था, ए भी 5,000 का था, ये आपका इंस्टॉलमेंट आपकी एक एंटिटी है। यहाँ पे ए सपोज L1 लोन का है, A2 L2 लोन का है, तो यहाँ पे तीनों एंटिटी ऐसी हैं जो सेम हो सकती हैं, इसीलिए हम इसी को वीक एंटिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिससे हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएं। तो इसके लिए ऑब्वियसली वीक एंटिटी, एक वीक रिलेशनशिप बोलेंगे इसको, और एक किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की हेल्प लेगा, और उस जिस एंटिटी की हेल्प लेगा उसकी प्राइमरी की को इसके साथ अब हम एसोसिएट करेंगे, तो इसको हम लोन के साथ एज ए वीक एंटिटी में करेंगे। इसके हर एंटिटी इंस्टेंसेस का इसमें पार्टिसिपेशन जरूरी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, राइट। इसको डबल लाइन से हमने यहाँ पे बताया है। इंस्टॉलमेंट नंबर हमारा डैश डैश करके, सॉरी, इसको हम इसके अंदर लिखेंगे क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की नहीं है, पर इस एट्रीब्यूट का यूज किया जा रहा है इस एट्रीब्यूट के साथ इस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, इसीलिए इसको हम पार्शियल की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल की, और इसको बोलेंगे हम एज ए प्राइमरी की, और इसको डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं कई बार, पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर, इसको हम बोलते हैं ये वीक एंटिटी, और सिंगल बॉक्स में लगाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी का, ठीक, राइट। तो जो हमारे ये ER डायग्राम बना, इसके अलावा भी अब और भी आपको लगता है कि कई इंपॉर्टेंट एंटिटी होना चाहिए, उनको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कोई और भी एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, उसको भी इंपॉर्टेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, पर मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा कि वी जस्ट include important entities and important attributes. We just remove all the redundant attributes जिसका कोई भी significance नहीं है। One more important things, इस ER डायग्राम को फाइनली हम टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब टेबल्स में इसका रिप्रेजेंटेशन होगा तो जितने भी यहाँ पे नोटेशन यूज किए हैं, प्लीज
जितने भी यहाँ पे नोटेशन यूज किए हैं, हर नोटेशन को हमें टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ए एट्रीब्यूट मेंशन किया है तो ये अलग तरीके से किसी टेबल का कॉलम बनेगा, या अगर ये रिलेशन मैनी टू मैनी रिलेशन है तो इसका कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, वन टू मैनी रिलेशन है तब अलग आपका रिलेशनल डेटाबेस बनेगा। वीक एंटिटी इंक्लूड की है तो उसका रिलेशनल टेबल में अलग कन्वर्जन होगा। तो इस डायग्राम्स में जो भी नोटेशन आप यूज करने वाले हो, जो भी आप एट्रीब्यूट्स यूज करने वाले हो, रिलेशनशिप जैसे भी क्रिएट करने वाले हो, मैनी टू मैनी, वन टू वन, वन टू मैनी, each and every notation play different role when we convert this diagram into the relational table। अगर आपने डायग्राम में रिलेशनशिप गलत एस्टेब्लिश की, एट्रीब्यूट्स गलत लिए, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स गलत लिया, तो आपका जो रिलेशनल टेबल कन्वर्ट होगी वो पूरी गलत टेबल में कन्वर्ट होगी। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इस डायग्राम्स को एक्यूरेट विथ उसके प्रॉपर नोटेशन, प्रॉपर रिलेशनशिप के साथ बनाया जाए, राइट। तो इसको हम बोलेंगे आपका या डायग्राम। तो ये छोटा सा एक डायग्राम था जिसमें हमने एक बैंकिंग सिस्टम को लेने की कोशिश की और उस बैंकिंग सिस्टम से हमने ये पूरा डायग्राम्स को डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन के साथ दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले रिलेशनशिप किस तरीके से है, मैनी टू मैनी, वन टू वन, वन टू मैनी, उसको इन्वॉल्व करना है, कार्डिनिटी को इन्वॉल्व करना है, एट्रीब्यूट्स के टाइप को करना है। अगर यहाँ पे कस्टमर का कोई और एट्रीब्यूट्स अगर हम यहाँ पे लेते हैं, राइट, यहाँ पे कस्टमर की अगर एज लेते हैं तो हम उसको एज ए ड्राइव एट्रीब्यूट के ट्रीट करेंगे। तो जो भी आप एट्रीब्यूट लोगे उसको प्रॉपर नोटेशन लोगे, क्योंकि प्रॉपर उसका जो सिंबल होगा उसी से वो कन्वर्ट होगा रिलेशनल टेबल में, राइट। सो दिस इज कंप्लीट ईआर डायग्राम ऑफ बैंकिंग सिस्टम। चेंज हो सकता है आपके हिसाब से, आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हो, पर हमें कंक्लूजन कि हमें रिडंडेंट एंटिटी एट्रीब्यूट को इन्वॉल्व नहीं करना है। सो दिस इज द फाइनल ईआर डायग्राम ऑफ बैंकिंग सिस्टम, गाइस। सो ओके, थैंक यू।